various applications in the medicine, various biotechnological applications in the medicine, which means कि अभी तक biotechnology, how has it been used in the health sector or the medicine sector to improve it. ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इसमें फर्स्ट जो यूज हुआ था या जो फर्स्ट एप्लीकेशन हुई थी दैट वाज एक्चुअली इंसुलिन. इट वाज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. एंड हमको पता है कि इंसुलिन, वेयर इज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी? इंसुलिन इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द islets of Langerhans. मैंने when we actually started with this biotech portion, I told you कि why was there a need of synthesizing insulin. ठीक है, because we already know there are some individuals who are suffering from diabetes and उनके बॉडी में क्या होता है, बेसिकली हमको इंसुलिन का फंक्शन पता है. इंसुलिन क्या करता है? इट लोअर्स डाउन द ग्लूकोज लेवल इन अ बॉडी. ठीक है, बट होता क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस इंसुलिन. तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? द इंसुलिन इंजेक्शंस दे नीड टू बी गिवन टू दीज इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब इंसुलिन इंजेक्शंस देने हैं तो इंसुलिन इंजेक्शंस के लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव दैट इंसुलिन इन आवर लेबोरेटरी और इन दोज इंजेक्शंस. तो विच मीन्स वी नीड टू सिंथेसाइज द इंसुलिन. ठीक है, so this process was done by this biotechnology, and the scientists actually came up with an amazing way of synthesizing insulin in the laboratory. ठीक है, so उन्होंने क्या किया था? First of all, insulin we know it is produced by the beta cells of the islets of Langerhans. ठीक है, अच्छा, जब इंसुलिन बॉडी में सिंथेसाइज होता है, मतलब व्हेन दीज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज दे एक्चुअली सिंथेसाइज इंसुलिन. जब इंसुलिन सिंथेसाइज होता है वो एक्चुअली प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है. प्रो इंसुलिन मीन्स दैट इट इज सिंथेसाइज इन द इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब व्हेन इट एक्चुअली हैज टू परफॉर्म अ फंक्शन तभी वो एक्टिवेट होता है टू चेंज इनटू द इंसुलिन. तो जब भी कोई इंसुलिन का जीन इंसुलिन को सिंथेसाइज करेगा, इट ऑलवेज विल बी सिंथेसाइज इन एन इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, now what do we mean by pro insulin और what do we mean by the inactive form? Inactive form का मतलब है कि जो pro insulin है it is present as three polypeptide chains. ठीक है, मतलब इंसुलिन में, प्रो इंसुलिन में there are three polypeptide chains and we call those polypeptide chains as A chain, B chain and the C chain. ठीक है, this is the condition with the pro insulin which means the inactive insulin. So A जो चेन है, A polypeptide chain, it contains 21 amino acids. B chain consists of 30 amino acids and the C chain consists of 33 amino acids. ठीक है, so these this is how the inactive insulin or the pro insulin is actually present. ठीक है, but obviously we require insulin in our body और मतलब जब when we need it in action it should be present in the active form. तो active form में insulin कैसे होता है? Active form में this C chain actually gets removed. ठीक है, when this inactive insulin gets converted into the active insulin, so during that process this C polypeptide chain is removed and the A chain and the B chain, they are joined with each other. So basically what is the purpose of C polypeptide chain? मतलब कि सीधा directly A and B polypeptide chain ही directly एक दूसरे से connected क्यों नहीं रहते हैं? उसका रीजन ये है कि जो C polypeptide chain है उसका फंक्शन ये है कि जब इवेंचुअली ए एंड बी को ज्वाइन होना है टू कन्वर्ट इनटू द एक्टिव इंसुलिन, एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करता है? तो व्हेन द सी पॉलीपेप्टाइड चेन गेट्स रिमूव्ड तो वो ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है. ठीक है, so when this is the inactive insulin, when the C polypeptide chain gets removed, it gets converted into the active insulin. So active insulin में सिर्फ दो polypeptide chains present होगी, one is the A chain and the other is the B chain. ठीक है, and how will they be joined with each other? They will be joined with each other through the disulfide bonds. And disulfide bonds कितने होते हैं? दो disulfide bonds present होते हैं between the A chain and the B chain, and one disulfide bond which is the intra disulfide bond is present in the A chain itself. ठीक है, so there are total 3 disulfide bonds. ठीक है, so I've written here that the C chain is actually removed prior to the insulin formation. मतलब जैसे ही इंसुलिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है तो सी चेन एक्चुअली गेट्स रिमूव. सो द फंक्शन ऑफ सी चेन इज टू ब्रिंग द ए एंड बी क्लोजर सो दैट अ डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड between the sulfur containing amino acids. Obviously आपको पता है these are the polypeptide chains.
तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो अमाइनो एसिड से बना होगा ऑब्वियसली, एंड अमाइनो एसिड्स में इफ यू रिमेंबर जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड between the sulfur containing amino acids, and जितने भी 20 amino acids हैं उनमें there are only 2 sulfur containing amino acids which are methionine and cysteine. ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे कौन से अमाइनो एसिड्स के बीच में हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द मीथियोनिन एंड सिस्टीन. सो जैसे ही इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे, सी चेन का जॉब it gets computed and the C chain is set free. ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया? They tried and isolated the genes for polypeptide chain A and B. C chain का क्यों isolate नहीं किया? Because C chain is an inactive form, so C chain की requirement नहीं है. Active insulin के लिए they only require the A chain and the B chain. So what did the scientists do? Scientists ने दोनों polypeptide chains के लिए genes को isolate कर लिया. Obviously genes होंगे तभी तो protein synthesize होगा. So the scientists, what did they do? They actually isolated the genes for polypeptide chain A and polypeptide chain B. ठीक है, तो suppose this is the they isolated the gene for the A polypeptide. उन्होंने इसका क्या किया? It went under transcription. ठीक है, transcription मतलब conversion into mRNA from DNA. So transcription के बाद यहाँ पे क्या आ गया? ये hnRNA. If you remember, I told you hnRNA is actually the heteronuclear RNA. तो जो जब भी mRNA सिंथेसाइज होता है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इट इज एक्चुअली hnRNA. मतलब उसमें दो टाइप्स की सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है. वन इज द एक्सॉन, अदर इज द इंट्रॉन. एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन. एंड जो इंट्रॉन होते हैं दे आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. एंड जो एक्चुअल में कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं दे आर द एक्सॉन्स. ठीक है, सो obviously HNRNA it is of no use to us because हमको सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस चाहिए हमारे mRNA में, which means we only require the exons and we have to remove the इंट्रॉन्स. तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग. ठीक है, तो जब स्प्लाइसिंग होगा, स्प्लाइसिंग से ये सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे एंड ऑल द एक्सॉन्स, अभी जैसे ये जो पीसेस भी रहेंगे ऐसे ये एक्सॉन्स, इन सबको ज्वाइन भी करना है. फॉर ज्वाइनिंग पर्पस वी ऑलवेज यूज एन एंजाइम व्हिच इज द लाइगेज. ठीक है, तो सब एक्सॉन्स को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम डाला एंड लाइगेज एंजाइम डालने के बाद ये एक कंप्लीट कोडिंग रीजन रह गया. कोडिंग रीजन मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट है विच कोड फॉर द एनी कोडिंग पार्ट. ठीक है, कोई भी इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. अच्छा, तो अब ये जो मेच्योर एमआरएनए बना है, इसमें मेच्योर एमआरएनए कैसे बना है? इसके 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम एंड होगा. 5 प्राइम एंड पे एक कैप प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पे एक पॉली एडेनिन की टेल होती है. सो दिस इज द एमआरएनए विच वी एक्चुअली रिक्वायर. ठीक है, अब क्या होगा? इस हमारा जब होस्ट सेल है, हम मतलब जो होस्ट सेल है वी आर टेकिंग इट एज ई कोलाई. ठीक है, अब होस्ट सेल के अंदर क्या होता है कि उसके पास ये लाइगेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो वो इस एमआरएनए को प्रोसेस नहीं कर पाएगा. सो होस्ट सेल विच इज ई कोलाई के लिए टू ईज द प्रोसेस व्हाट डू वी कन्वर्ट दिस एमआरएनए इनटू द डीएनए. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. So whenever RNA is converted into the DNA, जनरल प्रोसेस क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है विच इज द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, बट यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर कन्वर्टिंग mRNA into the DNA. So what will be that process? That will be known as the reverse transcription. And enzyme कौन सा यूज होगा? The enzyme used will be reverse transcriptase. ठीक है, अब रिवर्स एमआरएनए से यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके क्या डीएनए बना लिया. यहाँ पे ये डीएनए कौन सा बनेगा? दैट इज सी डीएनए. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. अच्छा, सेम चीज हमको ये सेम प्रोसेस करना है फॉर द बी पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, रिटन हियर सेम थिंग डन फॉर द बी पॉलीपेप्टाइड चेन. अब जब यहाँ पे ये सी डीएनए बन गया है, अब क्या करना है? अब हमको इसके अंदर हमारा डिजायर्ड प्लाज्मिड चाहिए, वेक्टर चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे? सी हैव रिटन द रीजन हियर Why are we doing all of this? इसको cDNA में क्यों कन्वर्ट किया? डायरेक्टली mRNA क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज E. coli वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड द प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव द लाइगेज एंजाइम, सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू cDNA. ठीक है, अब ये क्या होगा? ये जो cDNA बना है, नाउ द cDNA विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द E. coli. ठीक है, E. coli में इंट्रोड्यूस करने से पहले वी रिक्वायर अ वेक्टर. वेक्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अगेन ना प्लाज्मिड. ठीक है, तो प्लाज्मिड लिया, ये cDNA लिया. अब इसका हमने इसको कट कर दिया विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सपोज वी रिक्वायर दिस ओनली पार्ट, मतलब ये इंसुलिन
ए पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाला जीन है, इस सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ, ये प्लाज्मिड आया, इस प्लाज्मिड में इस इस सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेम थिंग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम टेक्नोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन का जीन हो गया, अब इस आरडीएनए को इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन इट इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस इन द इकोलाई, इकोलाई क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा थ्रू द सेम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। सेम चीज बी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए भी करेंगे, बी बी पॉलीपेप्टाइड चेन का भी जो आरडीएनए होगा उसको इकोलाई में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या होगा, जब दोनों के प्रोटीन एक्चुअली सिंथेसाइज हो जाएंगे, सो दी ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आइसोलेट कर लेंगे इन दोनों में से, एंड देन दे आर इंट्रोड्यूस इन सम मीडियम जहां पे उनके बीच में these disulfide bonds can be formed, because I just said जो active insulin होता है उसमें it contains only two chains A and B, and those chains have to be connected with these disulfide bonds, ठीक है। तो जब यहाँ पे A and B polypeptide को हम synthesize कर लेंगे, now they will be introduced in a medium which in which the disulfide bonds can be formed, ठीक है। सो ऐसे इंसुलिन फॉर्म हो जाएगा इन द लेबोरेटरी, एंड क्योंकि ह्यूमन ने इसको सिंथेसाइज किया है इसलिए इसको इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट इंसुलिन वी कॉल इट एज ह्यूम्यूलिन। Instead of calling it insulin, to separate it from the original, differentiate from the original insulin, we call it as humulin, because human being ने इसको synthesize किया in the laboratory, and it was done for the first time by a pharmaceutical company which is known as Eli Lilly of US in 1983, ठीक है। So this is how actually the insulin is synthesized, and this is how the insulin injections are used by the doctors, ठीक है। So मतलब वो जो basic technique है कि insulin synthesize कैसे होता है, this is the basic technique how is that insulin actually synthesized, because हमारी body obviously produces only a very little amount of insulin, so that insulin cannot be used. We need to synthesize the insulin in large amounts in the laboratory. So this entire process is followed. Clear? Is it clear? तो इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा, इसके बाद में बी पॉलीपेप्टाइड चेन का पोर्शन बना है, देन आई विल राइट इट डाउन। ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे बोलना।
मैम ब्लर हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा। क्या हुआ? मैम ब्लर हो गया। अभी ठीक है? Is it fine now? Is it visible now or not? निश्चय अभी दिख रहा है? हाँ कंप्लीट हो गए? हाँ मैम, आपकी आवाज पर लो हो गई। एक सेकेंड। Have you completed this? दोनों का हो गया? ओके। सो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द जीन थेरेपी। So what is gene therapy? Gene therapy, it is actually a collection of methods which allows the correction of gene. First, I write down the definition. So gene therapy, it is a collection of methods or methods कौन से which allow the correction of gene defects that allows the correction of gene defects that has been diagnosed in a child embryo. Which has been diagnosed in a child embryo. See, इसका मतलब क्या है कि basically जीन थेरेपी सपोज कोई इंडिविजुअल है या कोई बेबी है, दैट बेबी इज एक्चुअली born with a सपोज इट इज born with a faulty gene, मतलब सपोज कोई इम्यून सिस्टम का जीन ले लो या किसी भी चीज का कोई जीन ले लो, तो अगर उस बेबी के अंदर वो जीन फॉल्टी है, मतलब फॉल्टी है तो वो करेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, and if the correct protein is not synthesized in that baby's body, so protein form नहीं होगा तो there will be some disorder which will be caused due to the deficiency. ठीक है? So इस जीन थेरेपी में क्या हुआ था, ये फॉर द फर्स्ट टाइम दिस जीन थेरेपी वाज एक्चुअली डन एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किया गया था, और उसको हम बोलते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस में क्या किया था, फॉर द फर्स्ट time it was done to treat a defect in a gene, to treat defect in a gene that synthesized ADA, that synthesized ADA. This ADA actually stands for adenosine deaminase. एक्चुअली में होता क्या है, हमारी बॉडी में एक जीन है
ADA का जीन, दिस ADA एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। तो अभी ADA जीन क्या करता है, दिस जीन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारा किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ द बी सेल्स। अगर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें, सो जो इम्यून सिस्टम इट इज मेजरली मेड अप ऑफ बी सेल्स एंड द टी सेल्स, ठीक है। तो इस जीन के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इफ दिस जीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपर्ली, एंड जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो मेजरली दो टाइप्स के सेल्स हैं, विच आर द बी सेल्स एंड द टी सेल्स, अगर ये जीन absent है, so the B cells and T cells will not be formed, ठीक है। and you can obviously understand अगर B cells और T cells का formation नहीं होगा, so that baby which is born or the child will his or her immune system will be very low, ठीक है। तो हुआ क्या था, this was for the first time। और इस disorder को क्या बोलते हैं, जिस इंडिविजुअल में या जिस बेबी में ADA का डेफिशिएंसी होता है, that disorder is known as SCID। SCID stands for severe combined immunodeficiency syndrome, ठीक है। So this is the disorder which is called, इसको हम simply SCID भी बोलते हैं। SCID stands for severe combined immunodeficiency syndrome, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि यूएस में 1994 में इट वाज डन ऑन आई गेस 6-year-old गर्ल। वो उस गर्ल में देयर वाज दिस डेफिशिएंसी व्हिच वाज द एडीए डेफिशिएंसी, सो हर इम्यून सिस्टम वाजंट वर्किंग एट ऑल, बिकॉज उसमें उसका जो इम्यून सिस्टम है इट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द B cells and the T cells. So what did the doctors do? डॉक्टर्स ने उस गर्ल का फॉल्टी जीन को बॉडी से बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने फिर उस जीन को लैब में सिंथेसाइज किया, ठीक है, उसके अंदर, और फिर बाद में उसको उस बेबी उस गर्ल के लिम्फोसाइट्स के अंदर फिर से इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जब तक इस जीन का ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था, तो तब तक हर इम्यून सिस्टम इज कीप्स ऑन वर्किंग प्रॉपर्ली, बट एज सून एज द इफेक्ट ऑफ दैट प्रोटीन गेट्स ओवर, तो री इन्फ्यूजन कंप्लीटली तुरंत चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो बी सेल्स और टी सेल्स की लाइफ स्पैन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। सो जो इस जीन का इन्फ्यूजन है, मतलब ये जो जीन थेरेपी का प्रोसेस है, इट हैज टू बी रिपीटेड, मतलब कॉन्टिन्यूसली। सपोज अभी 1 month पे कराया, तो यू हैव टू डू इट अगेन आफ्टर 1 month एंड देन अनदर 1 month। तो द पॉइंट इज, अगर ये जो डिसऑर्डर है, इफ इट इज डायग्नोस्ड एंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है, सो इट कैन बी इजीली ट्रीटेड and the person or the girl or the individual hasn't come to the doctor again and again to get this gene therapy done, okay। So first of all we'll see the process and then see how it is actually happening, so you can write it down along with me।
see what does this flowchart do? The disorder जो है, disorder का name you have to keep it in mind. The disorder is actually SCID, which stands for severe combined immunodeficiency syndrome. तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, उस जो भी बेबी जिसके अंदर जीन थेरेपी परफॉर्म करना है उसमें से the ADA gene is isolated, the defective ADA gene, मतलब that is they are not able to produce the B cells and the T cells. ठीक है. So what do we take? We take a host cell which is the bacteria. ठीक है. So this is the bacteria which carries the plasmid with the cloned ADA gene. मतलब जो ADA gene हमको चाहिए we have actually cloned it. And यहाँ पे हम vector क्या use कर रहे हैं, instead of using a plasmid here मतलब host cell के लिए हम इसको क्या use कर रहे हैं, we are using it as a एक retrovirus हम use कर रहे हैं. ठीक है. So उन्होंने क्या किया, ये जो gene clone किया है, मतलब this is ये step उन्होंने कहाँ से दिखाया, जो directly recombinant DNA gene introduce हुआ है. ठीक है. वो plasmid वाला step और gene introduce करने वाला step नहीं दिखाया है यहाँ पे. So directly this is the rDNA gene. ठीक है. So this is the rDNA. और ये जो rDNA है, which is the ADA gene का rDNA, now it is actually introduced into the retrovirus. ठीक है. तो रेट्रोवायरस के अंदर इस rDNA को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो और एट द सेम टाइम क्या करेंगे, तो ये ADA जीन को मल्टीप्लाई करने लगेगा. एंड एट द सेम टाइम जो ADA जीन SCID पेशेंट से आइसोलेट किए हैं, मतलब और ये जो ADA जीन है दे आर इसमें T cells they are disabled, मतलब this ADA gene it is not able to form the T cells which are required for the cell mediated immunity. ठीक है. So now the T cells which are disabled with the ADA gene they are isolated from the SCID patient. And अब क्या करेगा, अब ये रेट्रोवायरस दिस विल इन्फेक्ट द T cells and transfer normal